السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 22۔ ان لوگوں نے اسے ایسی الفت بخشی جو بے پناہ محبت سے کہیں زیادہ تھی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اسے مرنے کے بعد راس نہیں آئی، لیکن اب وہی لوگ اس سے ایسی نفرت کرنے لگے تھے جو نفرت سے بھی زیادہ تھی، اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جہنم کے شعلے بھی اپنی تیز و تاند اور فلک پیما نہیں ہوں گے جتنے اس قوم کی نفرت اور غضب کے شعلے سے انیل پرکاش نے ایک عجیب و غریب دھوکہ کھایا تھا۔ وہ پوری قوم کو بیوقوف بناتا رہا اور اس کے فریب کا پول اس دن کھلا تو لوگ غیظ و غضب سے جلتی سوکھی گھاس کی طرح بھڑک اٹھے اور اس کی لاش جو امانتاً دفن تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اگر وہ شخص اس کا پول نہ کھلتا تو وہ بدستور انیل پرکاش کو اپنے خیالات اور من کے نہال خانوں میں دیوتا بنا رکھا تھا اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ بھگوان کا درجہ رکھتا تھا، لیکن اس کا فریب کا پول کھولنے والا کون تھا؟ میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ میں تھا، میں یعنی آپ کا خادم دیوا کمار۔ میری ذات کسی سے خصوصاً جو میرے کارنامے پڑھتے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جو ٹیلی پیتھی کا ماہر ہوں۔ میں نے انسانیت کی، دیش کی اور ستائے ہوئے لوگوں کی سیوا کے لیے پرائیویٹ سراغر ساں بن گیا ہوں۔ میرا دفتر وہیں ہوتا ہے جہاں میں ہوتا ہوں۔ میں کبھی ایک شہر میں نہیں رہتا۔ میں چنئی سے دہلی گیا اور پھر کولکتہ بھی گیا، سیر و تفریح کرتا رہتا ہوں، لیکن میرا اصل شہر ممبئی ہے۔ وہیں میرا دفتر بھی۔ میری رہائش ایک ایسی جگہ ہے جسے بالی ووڈ کی رنگین بستی کہا جاتا ہے۔ ممبئی کا مطلب تو آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اس شہر میں دولت مند، صنعت کار، جرائم پیشہ اور مافیا بھی ہے، اور زیر زمین کی دنیا بھی۔ جہاں جتنے بڑے دولت مند ہیں وہاں اتنے ہی غریب بھی ہیں، مفلس، تنگ و دست اور بے حد غریب بھی، جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی بمشکل ملتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ شیطانوں کا شہر ہے۔ جہاں دولت کی ریل پیل وہاں شیطان ہی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود فرشتے بھی ہیں، اور جن کے باعث شریف لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ فرشتے نہ ہوتے بھگوان جانے کیا ہوتا۔ اب اسے قسمت کی ستم ظریفی کہیے کہ انہی 3 دنوں میں دنیا کے خطرناک ترین جماعت مافیا کے ایک اعلیٰ کارکن اور اس کے خون اشام بدماشوں نے اس غریب شہر کو میرے لیے جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ مافیا کا یہ بڑا گرگا ایک ایسی طاقتور ایجنسی کا مالک تھا جس میں آرٹسٹ، مصنف، صناع، شاطر اور ایک سیاسی پارٹی کا مخالف ڈاکٹر اور 2 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ انہی دنوں میری 2 امیدواروں سے ملاقات ہوئی جو الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے مجھے حرامی کا خطاب دیا، دوسرے نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، اور اس کی خوش اخلاقی نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ آدمی میں اخلاق ہونا چاہیے۔ میں انیل پرکاش سے بھی ملا جو 3 دن پہلے تک بقید حیات تھا، اور اس بات میں کوئی شک و مبالغہ نہیں کہ وہ مردانہ وجاہت اور حسن کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، اور اسے دیکھ کر نہ صرف کنواری لڑکیوں بلکہ شادی شدہ عورتوں کے دل بھی دھک سے رہ جاتے ہوں گے۔ وہ عورتوں کا آئیڈیل تھا اور ان کے سپنوں کے راجکمار کی طرح تھا۔ ایسا خوبصورت شخص پہلے کبھی میری نظروں سے نہ گزرا۔ میرا قد 6 فٹ اور 2 انچ اور وزن 206 پاؤنڈ ہے۔ مضبوط اور ٹھوس جسم۔ انیل پرکاش مجھ سے بھی 2 انچ لمبا اور وزن میں شاید 5-6 پاؤنڈ زیادہ ہوگا، اور اس کی عمر 28 برس کی تھی۔ یہ مبالغہ داستان گوئی نہیں، در حقیقت اس کا حسن کسی یونانی دیوتا کا سا تھا۔ سونے پر سہاگا کہ وہ ایک گلوکار تھا، اور اس کے حسن کی طرح اس کی آواز بھی بے مثال تھی جو دل کے تاروں کو جھنجھنا دیتی۔ نوجوان لڑکیوں سے لے کر بوڑھے مرد اور عورتیں سب پر اس کی ملکوتی آواز جادو کا سا اثر رکھتی تھی۔
जवान औरतें और जवान मर्द तो यकसा तौर पर उसकी आवाज़ सुनकर वजद में आ जाते थे। लड़के लड़कियां बेकाबू होकर नाचते और थिरकने लगती थीं, तरंग में आ जाती। उन्हें जैसे अपना होश नहीं रहता था और उसकी आवाज़ के ज़ेरो बम और मिठास से खुद मेरा जी घंटों ना भरता था और मैं उसके बहुत सारे गाने फुर्सत के औकात में सुनता था। जाने क्या बात थी कि उसने प्ले बैक सिंगर बनना पसंद नहीं किया। फिल्मी दुनिया से वह दूर था और उसे बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र मिली, लेकिन उसने कबूल नहीं किया और फिल्म साजों से माजरत कर ली। हर फिल्म साज उससे अपना फिल्मी गाने गंवाना चाहता था। ऐसे लगता था कि उसे फिल्म से नफरत थी। हिंदुस्तान का ये नामूर और मशहूर गवैया जब अपनी सोज़ो गुदाद आवाज़ में गीत छेड़ता तो फरते अतराबो कैफ से सीने में धम घुटता महसूस होता। वो सिर्फ मोहब्बत के नगमे और गीत नहीं बखेरता था, उसने मुसलमानों की नस्ल और कौम के लिए हम्द और नात भी गाए जो रूहानी होते थे, बज्जड़ भी गाए। हिंदुस्तान के हर मज़हब कौम के लोगों को अपना गिरविदा बनाने का वो फ़न जानता था। उसके कोई 3-4 करोड़ केस्ट हाथों हाथ बिक गए और उसके शदाई उसके नई केस्ट के लिए बेचैनी से मुंतज़िर होते थे। उसकी वैरायटी शो के टिकट ब्लैक में फ़रोख्त होते। हिंदुस्तान का माइकल जैक्सन बना हुआ था। लड़कियां और औरतें उसकी एक झलक देखने और हाथ मिलाने के लिए तड़पती थीं। वो लड़कियां और औरतें जो उसके बिस्तर की जीनत बनी, वो बड़े फ़ख्र से अपने हमराह सहेलियों को फ़ख्र से बताती। सहेलियां उन पर रशक करती। मेरे लिए इन 3 डरावने और नाकाबिले यकीन अयाम का आगाज़ उस वक़्त हुआ जब अनिल प्रकाश के कारोबारी रफ़ीक और दमसाद गोपीनाथ की गुड़िया सी बहन रत्नानाथ मुझसे मिलने आई। गोपीनाथ अनिल प्रकाश का जिगरी दोस्त तस्वर होता था। उन दिनों को एक दूसरे के बगैर चैन नहीं आता था और उसका देहांत जुमेरात के रोज़ हुआ। उसकी बहन एक दिन के वक्फे के बाद मुझसे मिलने आई थी और उस मुलाकात के बाद ही मेरे लिए इब्लीस का सफाक और बेरहम हाथ हरकत में आ गया और जिसकी मुझे कोई तवक्का नहीं थी। हफ्ते के दिन मैं दफ्तर ना जाऊं और किसी वजह से जल्द बेदार हो जाऊं तो बिस्तर पर देर तक करवटें बदलता सोचता रहता हूं कि आज का क्या प्रोग्राम होता रहा और एक तरह से शबे बेदारी की थकन उतारता रहता हूं। उस हफ्ते की सुबह अगरचे देर तक जागने के बावजूद मैं जल्द बेदार हो गया। हर तरह से तरोताज़ा और हशाश बशाश था। देर तक बिस्तर पर पड़ा मैं सजाता को याद करता रहा। गुज़श्ता रोज़ वो मुझे डिनर पर ले गई थी। उससे 2 दिन पहले मेरी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। वो एक फिल्म में एमडी की प्राइवेट सेक्रेटरी थी और मॉडलिंग भी करती थी। वह अपनी मेज़ पर बैठी चिकन सूप पी रही थी। मैंने मशकूक अफराद को देखा जो उसे अगवा करने के इरादे से दूसरी मेज़ पर मौजूद थे। किस्सा ये था कि उसने अपनी मंगनी तोड़ ली थी और उसका मंगेतर उसकी काली रातों की आमदनी में निसफ हिस्सा मांगता था। वही उसका तारफ़ और मामलात अय्याश दौलतमंदों से कराता। मॉडल गर्ल एक करेंसी होती है, वो अपने आप को कैश कराती थी। वो दोनों हाथों से दौलत समेटती है क्योंकि जानती है कि औरत का हुस्न, शबाब और शोहरत 4 दिन की चांदनी होती है। वो मंगेतर को 25% कमीशन अदा करती थी और उन दोनों में कमीशन के मामले में तलखी और तकरार हो गई और जिस पर सजाता ने मंगनी तोड़ दी और फिर उसने एमडी को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि आज तक उसे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, मंगेतर को बोसा तक लेने नहीं दिया और उसका बॉस बहुत सीधा सादा आदमी था। वो उससे शादी करना चाहता था। सजाता ने उसे कह रखा था कि वह अपने मंगेतर से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ पींगे बढ़ा रहा है। और जब उसने अपने बास को मंगनी टूटने की खबर सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। उनके दरमियान तय पाया कि दोनों शादी कर लेंगे और उसके 50 वर्ष की उम्र के बास ने उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी पहना दी और उस खुशी में वो सजाते के चेहरे पर झुका तो वो बोली कि तुम पहले मर्द हो जिसे मैंने अपने चेहरे पर झुकने दिया। और वो ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसके साबक मंगेतर ने उसे अगवा करके ब्लैकमेल करने का मनसूबा बनाया हुआ था। मैंने सजाता और उन दोनों बदमाशों का ज़हन पढ़ लिया और जब मैं सजाता की मेज़ पर गया तो उसने मुझे हैरत से देखा था। मेरा नाम देवा कुमार है और मैंने उसकी इजाज़त लिए बगैर
कुर्सी खींची और बैठ गया। मैं एक प्राइवेट सुरागर सा हूँ, शायद तुमने सुना हो। शायद सुना तो है, वो बोली। तुम प्राइवेट सुरागर सा कम हीरो ज़्यादा दिखाई देते हो। क्या तुम मेरे खिलाफ कोई काम कर रहे हो? तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे हक में कुछ मदद करना चाहता हूँ, मैंने कहा। लेकिन मैं उसकी फ़ीस लूँगा जो तुम्हें महंगी नहीं पड़ेगी। तुम मेरी क्या मदद करना चाहते हो? उसने हैरत से पलकें झपकाई और बोली, और वैसे मुझे तुम्हारी खिदमत की कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। तुम इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत बल्कि आफताब का शिकार होने वाली हो, मैंने कहा। मैं इसलिए मेज़ पर आया हूँ कि तुम्हें आगाह करूँ और बचाऊँ। कैसी मुसीबत, कैसी आफताब? और उसका हसीन चेहरा सवालिया निशान बन गया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ, तुम मुझसे बात करना चाहते हो इसलिए कि मैं मॉडल गर्ल हूँ, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम मेरे साथ डिनर ले सकते हो। क्या खाना पसंद करोगे? बेबी, ज़रा मेरी बात गौर से सुनो, मैंने कहा। दाएं जनब जो मेज़ है और उस पर दो बदमाश बैठे हुए हैं। एक ने सफ़ेद शर्ट और बरून पतलून पहन रखी है, दूसरा शर्ट और काली पतलून में है, और ये दोनों तुम्हें बाहर निकलते ही अगवा कर लेंगे। बाहर एक गाड़ी है जिसमें दो बदमाश मौजूद हैं। मैं तुम्हें अगवा होने से बचाना चाहता हूँ। बचा लूँगा बशर्ते कि तुम मेरी फ़ीस अदा कर दो। लेकिन ये बदमाश क्या मुझे इसलिए अगवा करना चाहते हैं कि मैं बहुत हसीन हूँ और मारूफ मॉडल गर्ल हूँ? उसने कहा। क्या मैं पुलिस को खबर कर दूँ? उसकी वजह यह है कि तुम्हारी ऐसी तस्वीरें और वीडियो फिल्म बनाएंगे कि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा सके और तुम अपने बाप से शादी ना कर सको। क्या? और एक लम्हे के लिए उसका चेहरा जर्द पड़ गया और फिर वह संभल कर बोली, मैं बाप से शादी करने वाली हूँ, उन्हें क्या पता, ये तो राज है। सुनो बेबी, और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा साबिक मंगेतर नरेश, उसने ये मंसूबा बनाया हुआ है कि तुम्हें अगवा करके ऐसी तस्वीर और फिल्म बनाई जाए कि तुम्हारा बास तुमसे शादी ना कर सके और तुम उसके इशारों पर कठपुतली बनी रहो। वो तुम्हें ज़रिया आमदनी बना ले हैं, और तुम तो सब कुछ जानते हो। क्या तुम भीड़ चढ़ना चाहोगी इस मंसूबे पर? मैं तुम्हारी मदद ना करूं और उस अगवा से ना बचाऊं? नहीं नहीं, वो हज़ियानी लहजे में बोली। मुझे तुम्हारी खिदमत चाहिए। ये बताओ कि तुम्हारी फ़ीस क्या है और वो मैं अदा कर दूंगी। क्या फ़ीस होगी? तुम्हें एक डिनर और एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी, मैंने कहा। और तुम बहुत हसीन हो, मैं हुस्न का बड़ा परस्तार हूँ, ये मामूली फ़ीस है। मैं तुम्हें एक नहीं 10 डिनर खिलाऊंगी, वो बोली। दूसरी शर्त कड़ी है, क्योंकि मैं अपनी रातें काली नहीं करती हूँ। सुनो, सती सावित्री ना बनो। मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूँ कि कोई नहीं, बल्कि तुम खुद भी नहीं जानती होगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी काली रातों और उन लोगों के बारे में भी बता सकता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में आए। तुम मुझे दोस्त समझो, दोस्ती में हर बात जायज़ है। जब मैंने कुछ बातें उसे बताईं तो उसके होश ठिकाने आ गए और वो राह रास्त पर आ गई, और मैंने उसे अपना मंसूबा बनाया। और फिर मैं उससे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सजाता ने मेरी हदायत पर पूरी तरह अमल किया था, और जब वो डिनर से फारग होकर निकली तो उसे गन पॉइंट पर अगवा करके नरेश के फ्लैट पर ले गए। मैं इंस्पेक्टर के रूप में नरेश के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बदमाश ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी सीटी गुम हो गई, और मैंने एक लात उसके पेट पर रसीद की तो कई फुट दूर जा गिरा, और मैंने दरवाज़ा बंद करके रिवाल्वर निकाल लिया। ये नशस्तगाह थी और जिसे बेडरूम बनाया गया था ताकि अक्सबंदी की जा सके, और उसमें लाइटिंग भी थी, एक वीडियो कैमरा भी। कैमरा मैन नरेश बना हुआ था, एक बदमाश हीरो का किरदार अदा करने को तैयार था। उसकी और सजाता के कपड़े फर्श पर एक तरफ पड़े हुए थे। सजाता को पलंग से बांधा हुआ था, और उस कमरे में कुल 4 बदमाश और नरेश था, और एक बदमाश सजाता की मशकें खोल रहा था। एक बदमाश सिगरेट के कश लेता रहा। बिस्तर के पास खड़ा बदमाश सजाता से इस्तेहज़ाइया लहजे में कह रहा था कि अगर तुमने नखरे दिखाए तो सिगरेट से तुम्हारा जिस्म दाग कर दिया जाएगा। वो इतना ही कह पाया था कि उन सब की नज़रों में मैं आ गया था। नरेश के हाथ से कैमरा छूटकर फर्श पर गिर पड़ा, और मैंने नरेश से कहा, बाहर पुलिस की वैन खड़ी हुई है, और तुम क्या जेल की हवा खाना चाहते हो या मामला तय करना? लड़की, तुम कपड़े पहन लो। सजाता ने कपड़े पहन लिए, और मैंने रिवाल्वर की नाल पर साइलेंसर नस्ब करके उनसे कहा कि इनमें कुल 6 गोलियां हैं और एक के लिए 1 गोली काफ़ी है। और मैंने उन 4 बदमाशों को वाशरूम में बंद कर दिया।
रिवाल्वर की जिद में नरेश को लिए खड़ा रहा और सुजाता ने उसकी अलमारी मेरे कहने पर चेक की और उसमें 60,000 की रकम, 2 रिवाल्वर जो बगैर लाइसेंस के थे निकले। और फिर मैंने नरेश से कहा कि तुम 2 दिन के अंदर अंदर ये शहर छोड़ दो वरना तुम्हें अंदर कर दूंगा। तुम्हारे पास से गैर कानूनी असला बरामद हुआ और मैं KN सहगल हूँ, थाने में SHO बांद्रा थाने में, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जेल में सड़ा दूँ। 60,000 की रकम मेरी मलकियत थी और मैंने रेस्टोरेंट में जो मंसूबा बनाया था उसमें सुजाता से ये तय किया था कि नरेश के यहाँ से जितनी रकम और जेवरात बरामद होंगे वो मेरे होंगे, और इसलिए सुजाता ने उसमें से हिस्सा तलब नहीं किया। और वो तो इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी वजह से वह ब्लैकमेल होने से बच गई और अपने बाप से शादी करके घर बसाएगी। यूँ मेरे नसीब में 60,000 की रकम, डिनर और सुजाता आई और रात हमारी थी। हम बहुत देर तक जागते रहे। वो एक काल गर्ल भी थी। अगर वो अच्छी लड़की होती तो मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और वो सुबह कब गई मुझे कुछ खबर ना हो सकी। ना तो वो वॉशरूम में थी और ना कमरे में। अलबत्ता उसकी खुशबू से बिस्तर महक रहा था। फल की मिठास होंठों से चिपकी हुई थी। भगवान ने हर औरत अलग अलग बनाई है। हर औरत में एक इनफरादियत होती है जो दूसरी औरत में नहीं पाई जाती। हर एक का अपना मज़ा और जायका है। सुजाता मेरे दिलो दिमाग को भी मुअत्तर कर गई और मैंने सोचा काश वो जल्दी ना जाती, रुक जाती। मैं काफ़ी देर तक सुजाता के कुर्ब और उसकी महकती सांसों और बदन से फूटती सूंधी सूंधी खुशबू और गुदाज सरापा के तस्वर से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। सुजाता मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था ताकि मैं भी उसे मदऊ कर सकूं। उसने मुझसे एक बात कही थी कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो मेहरबान और काल गर्ल रहेगी, लेकिन शादी के बाद वो घर की 4 दीवारी में कैद हो जाएगी। मैंने उठकर वाशरूम में जाकर शेव बनाई, गुस्ल किया, मछलियों को चारा डालकर सैंडविचेस बनाए। काफ़ी के लिए केतली चूल्हे पर रखी थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बहुत कम लोग इतलाई घंटी बजाते थे और मैंने किसी वजह से होटल में एक अपार्टमेंट में रिहाइश इख्तियार की हुई थी। VIP लक्सरी अपार्टमेंट मेरे एक दोस्त का था जो इन दिनों यूरोप की बिजनेस टूर पर गया हुआ था। मैंने किचन से निकलकर दरवाजे के पास जाकर उसे खोला। एक चीनी गुड़िया ऐसी लड़की ने छूटते ही दराफत किया, आप मिस्टर देवा। पहली नज़र में मैंने उसे 9-10 वर्ष की बच्ची समझा और उसके फूल से और मासूम चेहरे पर नज़र डालने के बाद मेरी नज़रें उसके जिस्म के फराज पर पड़ी तो मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ कि वह 20-21 वर्ष की भरपूर दोशीज़ा थी। वो 5 फुट से 2 इंच कम होगी। जी हाँ, मैं देवा कुमार हूँ। मैंने एक तरफ हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर आ जाओ, बातें अंदर ही होंगी। वो कदरे तज़बज़ब और झिझकते हुए अंदर आ गई। मैंने पहले आपको दफ्तर जाकर देखा तो वो बंद था। मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ आना आपको हरगिज़ नागवार नहीं गुजरा। मैंने उसका फ़िक्रा इस अंदाज से मुकम्मल किया और तुम्हें इस बात का इल्म होगा कि मैं एक जासूस हूँ। हाँ, उसने अपना खुशनुमा सर दिलकश अंदाज से हिलाया और मैं उस लिए तो यहाँ आई हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ आना पड़ा। हम दोनों चॉकलेटी भारी दीवान पर बैठ गए और मुझे देखकर वो कुछ हैरान और मरऊब सी थी, और इसलिए कि मैं साइज़ में उससे 8 गुना जसीम था, या फिर मेरे सर के 1 इंच लंबे तने और सीधे खड़े बालों की वजह से हो सकता है, और फिर उसकी हैरत का बायस शायद मेरी खूबसूरती और वजाहत हो। शायद उसके ख्याल में जासूस इतने खूबसूरत ना होंगे और मैंने उसके ज़हन में झांका नहीं था। मेरे साथ गहरी स्याह आँखों, लंबी लंबी पलकों और स्याह लंबे बालों का खूबसूरत जोड़ा, गोरे बदन की वह चीनी गुड़िया जैसी लड़की बैठी थी और उसके चेहरे के नकूश दिलकश थे और होंठ बड़े भरे, रसीले और सुर्ख थे। आवाज़ में जल तरंग की खनक थी। अपने शौक नीले पीले और लाल रंग के लिबास को हाथों से हमवार करते हुए उसने मेरी तरफ देखा और हमवार लहजे में बोली, मैं आपसे अपना तारफ़ करा दूं। मेरा नाम रत्ना है। मैं रत्नानाथ आन जहानी गोपीनाथ की बहन हूँ। तुम्हारी भाई की मौत की खबरें सुन चुका हूँ, मैंने कहा, और शायद 2 दिन पहले देहांत हुआ था। मुझे अफसोस हुआ, आप गम ना करें। मेरा भाई गोपीनाथ अनिल प्रकाश का यारेगार था और वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगी, मैं कई बरसों की जुदाई के बाद चंद माह पहले अपने भाई से मिली
और हम दोनों पूना में पैदा हुए थे। और फिर जब मैं 11 वर्ष की और गोपी नाथ 17 वर्ष का था तो मेरे पिताजी ने किसी खानगी झगड़े के बायस मेरी माँ को तलाक दे दी। और उसकी वजह शायद ये थी कि पिताजी किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए थे, जबकि मेरी माँ हसीन और बेहद पुरकशिश थी। और मर्दों को पसंद और उनके मजाज के बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं अपनी माँ के साथ चली गई, इसलिए कि मुझे अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मैंने बताया था कि वह बहुत खूबसूरत थी। उससे शादी करने के लिए बहुत सारे उम्मीदवार थे, लेकिन उसने जिस शख्स से शादी की वो बुर्दबार था। और फिर सास और सेतीले बाप के साथ मैसूर शहर चली गई और फिर वहाँ से आलाहाबाद, फिर कोलकाता में क़याम के दौरान बहन भाई को ख़तो किताबत जारी रही थी। और फिर मैं मुंबई में गुज़श्ता जुलाई में भाई से मिली। ये मुलाकात 10 वर्ष के एक तवील अरसे के बाद हुई थी। मुलाकात के इब्तदाई लम्हात में कुछ अजनबी से रहे थे। अजनबियत की दीवार जल्द ही गिर गई और फिर हम बहन भाइयों की तरह घुल मिल गए। और उस वक़्त गोपीनाथ राइट को लेट होटल के एक सूट में रिहाइश पजीर था और एक शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन यहाँ तक बताने के बाद रत्ना पर एक रक्कस सी तारी हो गई तो वो खामोश सी हो गई। मेरे इल्म में ये बात थी कि गुज़श्ता जुमेरात को गोपीनाथ 8 मंजिलों की बुलंदी पर वाक़या अपने सूट से गिर कर चल बसा था। अखबार में उस इत्तफाकी मौत की खबर मैंने खुद पढ़ी थी। फिर रत्ना खुद पर काबू पाकर कह रही थी वो हर माह में 2-3 मरतबा मेरे और मम्मी के साथ चंद घंटे गुजारता था। उस वक़्त वो बहुत खुश और बड़े खुशगवार मूड में होता था, लेकिन पिछले महीने वो बड़ा ही उलझा हुआ और उखड़ा सा लग रहा था, जैसे कोई ना कोई बात हो और उसके लिए परेशान कुन थी। जब आदमी किसी वजह से बहुत परेशान हो जाता है तो उसकी यही कैफियत होती है। उसने क्या कुछ बताया नहीं, मैंने पूछा। अगर उसने बताया था तो क्या बताया था, तुम्हें अच्छी तरह से याद है? नहीं, रत्ना ने नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया। मैंने उससे पूछा ही था कि भाई क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई देती हो, जबकि पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा ये मामला उसके अपने सुलझाने का है और वो खुद ही कोई आखिरी फैसला करेगा। ना जाने क्या फ़ैसला था और जिसके लिए उसके असाब पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था। लेकिन जब उसने मुझे ये बताया कि 2-3 हफ्ते से डॉक्टर मुखर्जी के ज़ैर इलाज है तो मुझे ज़रा बराबर भी हैरत नहीं हुई कि उसकी ज़हनी हालत अच्छी ना थी। तो क्या तुम ये समझती हो कि उसने दिमागी खलजान की वजह से खुदकुशी की? मैंने कहा डॉक्टर मुखर्जी एक बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात है। नहीं, हरगिज़ नहीं मिस्टर देवा, वो कहने लगी। उसकी मौत से 1 घंटा पहले फ़ोन पर उससे मेरी बात हुई थी और उस गुफ्तगू के दौरान वो बड़ा मसरूर और खुशो करम था और उसे खुश पाकर मेरा दिल भी बहुत खुश हो गया। और मैंने उससे मसरत की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसने आखिरी फ़ैसला कर लिया है और अब वो आज़ाद होगा। और फिर उसने मज़ीद कहा कि फ़ैसला उसे काफ़ी मुद्दत पहले कर लेना चाहिए था। अब ये फ़ैसला करने के बाद कि उसके सीने पर से चट्टान हट गई और उस गुफ्तगू के बाद ये कैसे मुमकिन है कि उसने खुदकुशी की हो। ये बात दिल तस्लीम नहीं करता। खुदकुशी करनी होती तो वो ऐसी बातचीत ना करता। मेरे नज़दीक रत्ना की कोई वज़नी दलील नहीं थी, क्योंकि अक्सर औक़ात ये देखने और सुनने में आया है कि खुदकुशी से पहले मायूस लोग बड़े शादमान और मुतमिन हो जाते हैं, जैसे कोई दिया, चिराग और शमा गुल होने से पहले आखिरी बार भड़क उठते हैं। नीज़ आज़ाद होने का मतलब ज़िंदगी से भी आज़ाद होना है। हो सकता है और हो सकता था, और मैंने उस पहलू पर सोचा था। मैंने अपने ये ख्यालात रत्ना पर ज़ाहिर नहीं किए, क्योंकि वह उस बात को तस्लीम नहीं करती और फिर ये मौका बहस पे ये समझाने का नहीं था। पुलिस ने इस बात को हादसाती करार दिया है। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि तुम्हें पुलिस के इस फैसले से इत्तफाक नहीं। मैं कुछ नहीं कह सकती। उसने अपनी गर्दन हिलाई, क्योंकि वो बड़ा हंस रहा था, जैसे किसी ने उसे लतीफ़ा सुनाया है और जो अपनी हंसी पर काबू नहीं पा रहा। और उसने ये भी कहा था कि शाम को हमारे यहाँ डिनर पर सब कुछ बता देगा। और फिर उसने खिलाफ़ तवक्का एक अजीब सी बात कही जो चौंका देने वाली थी, जिसे सुनकर रगों में लहू मजमद हो गया। कहने लगा सब कुछ बता दूंगा, किसी ने मुझे कत्ल ना किया तो।
मैंने उसकी बात सुनकर हैरत का इजहार जुबान से नहीं चेहरे से किया और पलकें झपकाईं। क्या वाकई तुम्हारे भाई ने यह बात कही थी? हाँ, उसने ये बात कही थी। साफ और वाज़ा अल्फाज में। ये समाज का फतूर ना था, लेकिन वो बात कहकर फिर से हंसने लगा था और बाद में बताने लगा कि वो महज मजाक कर रहा था। उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि वो कत्ल होने से मुस्तना है। पता नहीं मुस्तना से क्या मतलब था उसके। बात कुछ पले पड़ने लगी और शायद उसने उस वक़्त खूब चढ़ा रखी होगी, इसलिए वो नशे की तरंग में था। ऐसे आलम में आदमी बहकी बातें करने लगता है। पल दो पल में माशा और वो क्या कह रहा है खुद नहीं जानता, इसलिए वो अपने आप को कत्ल से मुस्तना करार दे रहा था। वो नशे में धुत ना होता तो इस किस्म की बातें नहीं करता, सिर्फ एक बात कहता, संजीदा हो जाता। ये तमाम बातें दीवानों की सी लगती हैं मिस्टर देवा, रत्ना कहने लगी। मगर मुझे मालूम है कि वो दीवाना नहीं था, क्योंकि उसने उससे पेशतर इस अंदाज की गुफ्तगू कभी नहीं की, ना ही उससे उस बात की तवक्का थी। उसने फ़ोन रखने से पहले कहा था कि जब वो शाम को आएगा तो सब कुछ सच सच बता देगा और फिर दुनिया को मालूम हो जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, असल हकीकत क्या है। इन बातों से मैं उस नतीजे पर पहुंच चुका था कि गोपीनाथ ने ये सारी बातें दीवानगी के आलम में की थी, लेकिन मैंने रत्ना के एहसासात का पास किया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी बात से उसकी दिल शिकनी हो, दुख महसूस करे, क्योंकि उसके भाई को मरे हुए तीसरा दिन था। तुमने जो बातें अपने भाई के बारे में बताई वो मैंने सुन ली। मैंने कहा, अब तुम ये बताओ कि मुझसे क्या काम लेना चाहती हो? मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि उसे किसने कत्ल किया। रत्ना ने जोश के आलम में कहा और उसके चेहरे पर सुर्खी सी आ गई। मैं आपको 5,000 दूंगी, शायद रकम कम है, मगर मैं आपको मज़ीद रकम दूंगी और उसे आप पहली किस्त समझ लें। मुझे एक जगह से रकम मिलने वाली है और वो रकम जैसे ही मेरे हाथ आई मैं आपको वो रकम भी दूंगी। मुझे गोपीनाथ से बड़ी मोहब्बत थी, वो मेरा भाई था। और वो अचानक सिसकियां लेकर रोने लगी और उसके कर्ब आलूद चेहरे पर आंसू तेजी से बहने लगे। किसी लड़की और औरत को रोते देखना मेरे लिए बड़ा सब्र आजमा होता है। गो कि मैं बड़े दिल गुर्दे का आदमी था और मेरे आसाब बहुत मजबूत आसाब थे। जाने कैसे कैसे खूनी तनादर देखकर मेरा दिल दहलता नहीं था, लेकिन जब कोई औरत रोती तो ऐसे मौके पर अक्सर मैं बौखला जाता। चुनाचा सटपटा कर बोला, रत्ना देखो मत रो, सब ठीक हो जाएगा, तुम इत्मीनान रखो, परेशान और मुतफक्कर ना हो। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूँगा जो हकीकत है वो सामने आ जाए। अच्छा, अब रोना धोना छोड़ दो, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं। मैंने पहले तो उसका शाना थपथपाया और फिर जेब से अपना रुमाल निकालकर उसके मोतियों जैसे आंसुओं को उसमें जज़ब किया। चंद लम्हों के बाद रोना मकूफ करके वह पुरसकून हुई तो मेरी जान में जान आई और उसने मेरा रुमाल लेकर गालों से आंसू पूंछे तो मैंने कहा, अनिल प्रकाश के तुम्हारे भाई के साथ बड़े खुशगवार तल्लुकात थे। क्या तुम बता सकती हो कि उनकी पहली मुलाकात कैसी हुई थी? एक रोज़ गोपीनाथ ने मुझे बताया था कि सबसे पहले उसने अनिल प्रकाश के गले की खुदादाद सलाहियत दरियाफ़त की थी। गोपीनाथ खुद ही गाने बजाने का बेहद दवा था। वो सुबह सवेरे रियाज भी करता। पड़ोस में एक उस्ताद वली शाद रहते थे जो गायकी में बड़े शोहरत रखते थे और उसने उनकी शागिर्दी भी की थी। नौजवानी में कुछ क्लबों में गाता भी रहा और उस वक़्त वो 20 बरस की उम्र का था और उसने इस बात की बड़ी कोशिश की थी कि उसे फिल्मों में गुलकारी के हैसियत से लिया जाए, लेकिन वह नाकाम रहा और उसने ये बात खत में लिखी थी। गोया गोपीनाथ और अनिल प्रकाश दोनों गाने के शौकीन थे। ये बात काम की थी। रत्ना कह रही थी, मैंने बताया कि गोपीनाथ मौसीकी से काफ़ी शगफ रखता था और उसने अनिल प्रकाश के 3 मकबूल तरीन नगमे भी लिखे थे। शायद आपको इसका इल्म हो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, इसलिए कि मैं सिर्फ अनिल प्रकाश की आवाज़ से दिलचस्पी रखता था। मैं उसे सुनता था। खैर, तो 6 बरस पहले गोपीनाथ के इल्म में ये बात आई कि अनिल प्रकाश ने मुंबई, कोलकाता और बंगलोर के नाइट क्लबों से मुआहदा कर रखा है और वो इन दिनों बड़े शहरों में मुकर्रर तारीखों में जाकर अपने फ़न का जादू जगाता है। ज़्यादातर वक्त वह मुंबई के क्लब को देता था और फिर उनकी मुलाकातें हुई
اور پھر وہ گوپی ناتھ کو لے کر جگدیپ کے پاس آ گیا۔ باقی باتیں ہر ایک کو معلوم ہیں۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جگدیپ، جس کا حوالہ رتنا نے دیا تھا، اس کا پورا نام جگدیپ موہن تھا اور وہ گلوکاروں اور دوسرے فنکاروں کی انجمن کا کرتا دھرتا تھا۔ یہ شخص کروڑ پتی تھا۔ جگدیپ اینڈ سنس کا مالک اور ملک کے ناموراس ایجنسی کے فہرست میں تھے۔ 4 برس پہلے کی بات ہے، جگدیپ موہن نے انیل پرکاش کو ایک نئے ستارے کے نام سے متعارف کرایا تھا۔ وہ ایک ورائٹی پروگرام تھا اور جس میں شو بزنس کے بڑے بڑے نامور گلوکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ سب سے پہلے 2 گلوکاروں اور گلوکاراؤں نے اپنے نغمے اور گیت گا کر ایک سماں باندھ دیا تھا اور ان کا سحر سامعین کو مبہوت کر گیا تھا۔ سب سے آخر میں انیل پرکاش کو جگدیپ موہن نے اس تعارف کے ساتھ پیش کیا تھا کہ اب جس فنکار کو گانے کی دعوت دے رہا ہوں وہ ایک نوجوان اور شوقیہ فنکار ہے اور اس نے آج تک کسی پروگرام میں حصہ نہیں لیا اور اسے پہلی بار سامعین کے سامنے لانے کا اعزاز میں حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ایک نئی اور اچھی آواز ہے، آپ اسے اور مجھے بھی یقیناً سراہیں گے۔ یہ نگینہ میں نے کہاں سے دریافت کیا، مجھے کہاں سے ملا، بہرکیف آپ سنیں دیکھیں۔